Okay, so continuing forward, we are looking at the specifications, and let's move to see the division 7, which is the most specific and related to the waterproofing subcontractor. So in here we have the self-adhering sheet waterproofing, polymer modified cement waterproofing, formed and place insulation system, spray applied insulation, fluid applied membrane, air barriers, then this kind of all the waterproofing materials, fire protection, fire stopping, fire protection, penetration fire stopping, joint fire stopping, gas smoke containment, containment barrier, perform joint seals, joint sealants, acoustical joint sealants, expansion control. All these fall under the scope of waterproofing subcontractor. So let's move to see the division 7. It's in the volume 1, and it we have as the division 7. Okay, so in the division 7, what we need to include in the waterproofing subcontractor as begins here. So first of all, summary: rubberized walled sheet waterproofing system for vertical below grade foundation walls. Secondly is HDPE sheet waterproofing for horizontal and vertical blind side applications. So these two are under this division. Then we need to see the products. In the products we see rubberized wall sheet waterproofing, क्या thickness है, क्या material है, क्या properties हैं, etc. Then is HDPE sheet waterproofing, क्या properties हैं, क्या design materials हैं, blind sheet waterproofing. तो यहाँ से हमें materials का idea हो जाएगा. On the next trade we have as polymer modified cement proofing. The scope summary is polymer modified cement waterproofing for negative side application to concrete for elevator pits. Elevator pits पर ये specialized waterproofing material यूज हो रहा है और related joint sealants से. तो आप products में आओगे, you can find the details of the product. Then as thermal insulation. Thermal insulation is foam, plastic board, fiberglass and rock mineral wool blanket and mineral wool board. So these kind of insulations which are within the walls or at the exterior वो आपको idea हो जाएगा by going through the products in the specs. Then is the formed place in insulation system. Similarly spray इंसुलेशन इन द क्रॉल स्पेस में जो इंसुलेशन आ रही है वो इसमें कवर होगा. तो इस तरह से आप डिवीजन नंबर 7 को कवर करोगे और उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा. वेपर रिटार्डर्स जो एयर बैरियर्स हैं, फ्लूइड अप्लाइड मेम्ब्रेन एयर बैरियर्स हैं, वेपर परमिएबल मेम्ब्रेन एयर बैरियर्स, और ये कहाँ पर अप्लाई होंगे, क्या डेफिनेशन है, क्या इनके स्पेक्स हैं, प्रोडक्ट्स क्या हैं, समरी क्या है, वो आपको ईजीली एंड वेल रिटन इन द स्पेक्स होगा. तो इस तरह से आपके डिवीजन 7 में वाटरप्रूफिंग इनको डिटेल आउट किया होगा. देन एज जो आपसे मैं डिस्कस करना चाह रहा था रिलेटेड टू द डिवीजन 9 जिप्सम बोर्ड. जिप्सम बोर्ड में क्या चीज़ें कवर होंगी, ये आ गया आपके पास डोर्स का और डिवीजन 9. लेट्स से दिस इज द डिवीजन 9 और डिवीजन 9 में आपके पास क्या कवर हो रहा है. डिवीजन 9 में आपके पास है इंटीरियर जिप्सम बोर्ड और टाइल, बैकर बोर्ड, प्रोडक्ट्स, फायर रेजिस्टेंट असेंबलीज और STC रेटेड इंटीरियर जिप्सम बोर्ड, स्पेशलिटी जिप्सम बोर्ड, acoustically enhanced gypsum board, tile backing panels, trims, joint treatment material, joint tapes, joint compound. ये हम ड्राइवर में ऑलरेडी कवर करते हैं joint compound for this. So thermal insulation as specified in this insulation. ये insulation कौन से हैं जो आपके डिवीजन
7 में कवर हो रहे हैं, जो कि आपकी वॉल्स के अंदर इंसुलेशन आ रही हैं, सीलिंग्स के अंदर इंसुलेशन आ रही है, रूफ पर आ रही हैं, क्रॉल स्पेस में आ रही हैं। सिमिलरली इकोस्टिकल सीलेंट्स जो आपकी ड्राई वॉल की पार्टीशंस होती हैं उसके टॉप एंड बॉटम पर, जहाँ पर टॉप रनर्स बॉटम रनर्स होते हैं वहाँ पर ये सीलेंट अप्लाई हो रहा होता है, तो वहाँ पर ये यूज़ हो रही थी। साउंड अटेन्यूएशन ब्लैंकेट्स वही जो आपकी फाइबर ग्लास इंसुलेशन विद इन द इंटीरियर वॉल्स, और उसमें स्पेसिफाई करना ये ज़रूरी होता है कि उसकी थिकनेस क्या है और उसकी आर वैल्यू क्या है। तो आर वैल्यू इज़ द रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ द इंसुलेशन मटेरियल्स, और इसी तरह से थिकनेस आल्सो स्पेसिफाई आउट कि उसकी आर वैल्यू क्या होगी और थिकनेस क्या होगी और उसकी प्राइस क्या होगी बन। तो इस तरह से आपका ये डिवीजन कवर होती है। तो इसमें जो आई वांटेड टू शो एज डिवीजन 8 में आपके पास डोर्स, विंडोज एंड दिस काइंड ऑफ स्टफ सारा का सारा कवर हो रहा है। एंड डिवीजन 7 में वी हैव डिटेल्ड acoustical joint sealants. Let's take a look at it. Let's say we need to see this trade, और ये ट्रेड आपके पास should be visible in the volume 1 I guess, because volume 2 has extended version of it. So this is the joint sealant section. They have shown joint sealants, acoustical joint sealants, और इससे related आगे descriptions में joint sealants हैं, joint sealant packing materials, joint sealant schedule, application, joint location, manufacturer, formulation. Okay, so we move down. Pre-construction, field adhesion, field conditions, product joint sealants, backings are the related compatible with another silicone joint sealants use हो रहे हैं, और this is the detail के कहाँ पर क्या materials यूज़ हो रहे हैं joint sealant backing. I will show you this in the another project as well. तो होता क्या है कि एक्ूस्टिकल सीलेंट्स जो कि टॉप एंड बॉटम रनर्स के अराउंड जिप्सम बोर्ड अप्लाई करने के बाद यूज़ किए जाते हैं, वो यूजुअली कवर होते हैं आपके डिवीजन बाय द जिप्सम बोर्ड कॉन्ट्रैक्टर. तो दिस इज़ अबाउट द एक्ूस्टिकल सीलेंट्स. डिवीजन 7 में डिटेल आउट किया होता है अबाउट ईच एंड एवरी सीलेंट मटीरियल. ओके, देन एज वी नीड टू टेक अ लुक एट the plans. For plans means first of all what we do is we will make an overview of the project कि इसमें है क्या क्या. तो this is the new building construction, और इसकी drawings index में हम देखेंगे तो we will find out general drawings, and then we have as the civil drawings में हमारे पास site की plans, and then is the landscape drawings and plans. Then thirdly is we have the architectural site plan, overall floor plan, level 1, 2, 3, crawl space, and then we have the interior finish plans, exterior wall sections, exterior plan details. Then we have is the plumbing fixtures और ये सब किया. तो majorly what we have is the floor plans, level 1, we have the crawl space, level 1, 2 and level 3, and then the roof plan. So ये हमारे पास given है. Then we have as we have the structural drawings, overall foundation plan, framing plan, crawl space plan. तो 3-story building है with the roof at it. तो let's do an overview कि हमें
स्कोप कैसे फाइंड करना है डिवीजन 7 के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स बिगिन विद द इंडेक्स, और इंडेक्स में इन अ सीक्वेंस फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव इज द सिविल ड्राइंग्स. तो सिविल ड्राइंग्स में हमारे पास जब हम आएंगे तो हमें यहाँ पर शो होगा. So in the general drawings, and then we have the civil drawings. Civil drawings, civil drawings, civil drawings, civil drawings, civil drawings, civil drawings, civil drawings. फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें एक तो ये रियलाइज़ करना है कि इसमें स्कोप ऑफ वर्क क्या है. ऑब्वियसली देयर वुड बी पेमेंट, साइड वॉक्स, कर्ब्स एंड ईच काइंड ऑफ थिंग. तो हम सबसे पहले सर्च करेंगे वन बाय वन द सर्च टर्म्स जो कि आपसे डिफाइन की हैं पहले यहाँ पर, कि आप उनको सर्च करें. लेट्स से जॉइंट. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सर्च एज जॉइंट. सो बाय जॉइंट यू विल सी दिस थिंग हेयर, एक्सपेंशन जॉइंट. ओके, control joint, CJ equals to EJ is equal to expansion joint. So-called joints to be replaced as indicated on the plans. Minimum half inch. It means कि so-called joints आ रहे हैं. Refer to layout plans for exact locations. Then expansion joints place at maximum of 30 feet on center. तो it means कि अगर आपको on the drawing details नहीं given कि spacing क्या है expansion joints की, यू कैन लुक के यहाँ पर बताया हुआ 30 फीट ऑन सेंटर. ओके, देन पेविंग आ रही है, उसके अंदर ये जॉइंट्स आ रहे हैं. देन जॉइंट्स आ रहे हैं. फिर उसके बाद ये W1 कंक्रीट वॉल है, उसके अंदर जॉइंट्स आ रहे हैं. देन आपके पास ये पेविंग P2 है, उसमें भी जॉइंट्स आ रहे हैं. फिर उसके बाद एक्सपेंशन जॉइंट्स आ रहे हैं, कंक्रीट पेविंग जॉइंट्स. अब ये डिटेल्स पर मूव कर गया है और ये हमें शो कर रहा है कि जहाँ सॉकेट है वहाँ पर जस्ट ये गैप है, और जहाँ पर एक्सपेंशन जॉइंट है वहाँ पर जॉइंट सीलेंट यूज़ हो रहे हैं. जॉइंट सीलेंट यूज़ हो रहा है और उसके नीचे नॉन एक्सट्रूडेड बिटुमिनस टाइप आर रेजिस्टेंट फिलर यूज़ हो रहा है. ओके, देन जॉइंट आपको क्विक कपलिंग वॉल्व, ये कहाँ पर जहाँ पे आपके वॉल्व्स आ रहे हैं उसके अराउंड आ रहा है. देन एज ये पाइप्स के अराउंड वो बता रहा है. Control joints, expansion joints, slip joints, chord joint, location of joint sealants with adjacent joint sealants exposed to view, expansion joint. So ये आपके पास मेटल बुलार्ड, जहाँ पर बुलार्ड्स इंस्टॉल हो रहे हैं उसके अराउंड आप नीचे जॉइंट सीलेंट यूज़ हो रहा है. देन बिल्डिंग एक्सपेंशन जॉइंट. ओवरऑल फ्लोर प्लान में ये डॉटेड लाइन के साथ आपको बिल्डिंग एक्सपेंशन जॉइंट शो कर रहा है. तो बिल्डिंग एक्सपेंशन जॉइंट आपके पास ये शो हो रहा है. नो, दिस इज A and B. इट शुड बी समवेयर. Building expansion joint. So here this a expansion joint, यहाँ पर building expansion joint भी होना चाहिए, और I think so this is the building expansion joint. They are saying कि it's going throughout the building. तो ये फाउंडेशन में भी होगा, ये आपकी वॉल्स में भी होगा, ये आपके सीलिंग्स में भी होगा, और ये आपके रूफ में भी होगा. तो expansion joint is actually a gap between the consistent construction of the building. उसके मिड पॉइंट पर या उसकी किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन पर एक्सपेंशन जॉइंट शो किया होता है. सो ये आपका एक्सपेंशन जॉइंट होगा. तो ये आपको जॉइंट्स के बारे में बता रहे हैं. तो इस तरह से आप जब जॉइंट का वर्ड सर्च करोगे तो यू विल फाइंड एट मल्टीपल लोकेशंस के वो कहाँ पर आपको जॉइंट्स का स्कोप शो कर रहा है. देन इज द सीलेंट्स. सो यू विल डू एज कंट्रोल F. You will do is control F and sealant.
सीलेंट आप सर्च करोगे तो ड्राइंग्स में आपको सिमिलरली जैसे जॉइंट सर्च किया था वैसे मल्टीपल लोकेशंस पर आपको ये जॉइंट सीलेंट एंड बैकर रोड जॉइंट सीलेंट। अब ये आपको यहाँ पर ये जो स्पेक सेक्शंस उन्होंने मेंशन है वो यहाँ पर शो किए होंगे। लेट्स से 792 इट शुड बी इन दिस वन। ये आपके बैकर रोड एंड सीलेंट्स यूज़ हो रहे हैं, फ्लैशिंग यूज़ हो रही है। 792A 792 एंड 762 जॉइंट सीलेंट एंड 762 थ्रू वॉल शीट मेटल फ्लैशिंग। तो ये आपके इस तरह से सीलेंट्स आप सर्च करते जाओगे, आपको मल्टीपल लोकेशंस पर वो शो करता जाएगा। एंड देन यू विल जनरलाइज आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल दिस डिटेल्स के एक्चुअली कहाँ पर किन लोकेशंस पर सीलेंट्स जॉइंट्स यूज़ किए जा रहे हैं। सिमिलरली CJ यूज़ करेंगे क्योंकि इसके लेजेंड्स में CJ इक्वल्स टू एक्सपेंशन जॉइंट वो कह रहा है, तो CJ हम फाइंड करेंगे और C.J. तो हमें डिफरेंट लोकेशंस पर कंट्रोल जॉइंट्स मिलेंगे। लेट्स से ये उसने शो किया हुआ है, कंट्रोल जॉइंट आ रहा है, ये कंट्रोल जॉइंट आ रहा है, ये कंट्रोल जॉइंट आ रहा है। तो इस तरह से हमें मल्टीपल लोकेशंस पर कंट्रोल जॉइंट शो होते जाएंगे। नेक्स्ट हम लेट्स से एक्सपेंशन कंट्रोल वाटर प्रूफ कोट। लेट्स से सर्च द वर्ड कोट सर्च करोगे पाउडर कोटेड, ये तो कंट्रोल जॉइंट्स हैं और उसमें कह रहा है कि पाउडर कोटेड वाइट फिनिश होना चाहिए उसका, कंट्रोल जॉइंट से रिलेटेड ही वो कोट शो कर रहा है। पाउडर कोट फिनिश, पाउडर कोटेड इज़ लाइक मेटल फिनिश, तो ये आपका उस स्कोप में कवर नहीं होगा वाटर प्रूफिंग में, इट्स अ फिनिश आइटम। तो कोट में ऐसा अगर आपके पास बिटुमिनस कोट्स होती तो वो आपको शो कर देता, लेकिन आई थिंक सो कि हमारे पास यहाँ पर कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है। ई क्लास कोटिंग क्लास, ई क्लास पाउडर कोट, जॉइंट कंपाउंड एंड कोट बैक सॉल्यूशन प्रिवेंट elastomeric coating, and now this one must be under the scope of waterproofing because ये dumpster enclosure है और उसकी CMU walls हैं और उसके ऊपर elastomeric coating आ रही है, तो ये आपके waterproofing के scope में cover होगा। ओके, देन वाटर रेजिस्टेंस, वेपर परमिएबल एयर बैरियर, ये यूज़ हो रहा है, उसका स्पेक सेक्शन बताया और ये कहीं ना कहीं यहाँ पर स्पेसिफाई किया होगा। तो इस तरह से आपके पास सारे के सारे स्पेसिफाइड स्क्रैच कोड बॉन्ड कोड ये आएंगे। नेक्स्ट आपके पास ये बाकी भी टर्म्स हैं, आप इनको सर्च करते जाओगे एंड यू विल फाइंड आउट द रिलेटेड स्कोप ऑफ इट। सो इन समरी इसी तरह से इसका सेकंड ड्राइंग सेट है और सेकंड ड्राइंग सेट में भी ये लेट्स से यहाँ पर हम सर्च करते हैं E.J. एक्सपेंशन जॉइंट सर्च करते हैं, तो एक्सपेंशन जॉइंट आपको ये शो कर रहा है यहाँ पर इस लोकेशन पर कहीं पर 1 इंचेस का एक्सपेंशन जॉइंट है थ्रू आउट द बिल्डिंग। ये आपका एक्सपेंशन जॉइंट थ्रू आउट द बिल्डिंग नहीं है, इस जॉइंट पर ये आपका एक्सपेंशन जॉइंट यूज़ हो रहा है। इफ़ यू मूव नेक्स्ट तो इस लोकेशन में यहाँ पर एक्सपेंशन जॉइंट यूज़ हो रहा है। तो एट मल्टीपल लोकेशंस यू विल फाइंड आउट दी एक्सपेंशन जॉइंट्स एंड बाय द वे दीज आर द स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स। तो आपको स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स में भी एक्सपेंशन जॉइंट्स कंट्रोल जॉइंट्स शो कर रहे होते हैं। तो इसी तरह से वेपर बैरियर्स वो आपको स्लैब के साथ इंडिकेट किया होता है। तो इस तरह से आपको स्कोप ऑफ वर्क फाइंड करने में हेल्प मिलेगी। तो इन अ समरी, इन अ नटशेल आई वुड से कि समरी में आपके पास क्या क्या इंक्लूड होता है। नंबर 1 लोकेशंस या ट्रेड्स which include concrete, site, concrete, CMU masonry, facade, openings, facade, roofing, facade, openings, roofing and MEP। इन सब में आपके पास ये लोकेशंस हैं और इनमें यूज़ क्या क्या होता है। Number 1 is square feet materials which may be
coating applied, which may be a vapor barrier applied sheet, which may be a fluid applied, which may be a sprayed मटेरियल. तो ये आपके स्क्वायर फीट में इस तरह से मटेरियल्स आएंगे. देन लीनियर फिट में आपके पास फ्लैशिंग्स, सीलेंट्स, बैकर रोड्स, एक्सपेंशन जॉइंट्स, कंट्रोल जॉइंट्स एट्सेट्रा, ये आपके यूज़ होंगे. देन इज ईच में आपके पास पेनिट्रेशन काउंट्स. ये कैसे होंगे? ये आपके होंगे रूफ में जो पेनिट्रेशन है, वेंट थ्रू रूफ है, उसके अलावा कोई पाइप्स हैं उन पर आ जाएंगे. इंटरनली अगर MEP को भी मैं थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर दूं तो व्हाट वी हैव एज्यूम्ड इज़ कि एक रूम में लेट्स से हर वॉल में एक इनलेट इलेक्ट्रिसिटी का और एक आउटलेट इलेक्ट्रिसिटी का मस्ट होगा. सिमिलरली लेट्स एज्यूम कि उस रूम में प्लम्बिंग का भी इनलेट है और आउटलेट भी है. इसी तरह से मैकेनिकल का भी इनलेट भी है और आउटपुट भी है. तो इन टोटल वी हैव 6 inlets and outlets or simply 6 penetrations for these 3 trades through walls in all the rooms. इसी तरह से आपके पास फायर प्रोटेक्शन है, इसी तरह से आपके पास फायर सप्रेशन है. तो इट बिकम्स फायर अलार्म, फायर सप्रेशन, फायर प्रोटेक्शन. तो इस तरह से ही आपके पास थ्रू द वॉल्स फॉर द 5 ट्रेड्स we will have 10 penetrations through walls. and let's assume कि एक penetration आपकी through ceiling and roof है. तो हर रूम में 5 trades के लिए 5 penetrations होंगी through the ceilings or roof. 10 penetrations through walls in each room, through roof ceilings in each room. So let's say if we have a building of 20 rooms, so the total number of penetrations will be 15 times 20 equals to 300 penetrations. So this is 300 number of penetrations. तो ये सब in a nutshell is the summary कि हमने वाटरप्रूफिंग सब कॉन्ट्रैक्टर के लिए स्कोप आइटम्स कौन कौन से कवर करने आते हैं और कैसे. एंड finally I would say it's just a hindsight of it. It's not I have covered each and everything completely because it's specific to each project. किसी में कुछ आइटम्स ज़्यादा होते हैं, किसी में कुछ आइटम्स कम होते हैं, बट बेसिकली आई हैव गिवन यू एन ओवरव्यू के सब कॉन्ट्रैक्टर के लिए हम किन किन लोकेशंस को फोकस करेंगे, किन किन स्पेक्स को कवर करेंगे, क्या क्या सर्च आइटम्स होंगे हमारे ड्राइंग्स में और किस तरह से हम उनको टारगेट करेंगे. तो दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ वी विल कवर द subcontractor subdivisions. We have the square feet items, we have the linear feet items, we have the penetrations in each, and और इसी तरह से स्क्वायर फीट में आपके पास इंसुलेशंस इंटीरियर में, एक्सटीरियर में, इंटीरियर वॉल्स में, एक्सटीरियर वॉल्स में, वो सब आपके आएंगे. देन ईच पेनिट्रेशन काउंट्स होंगे आपके. उसके अलावा फायर स्टॉपिंग इज़ डिफरेंट लोकेशंस पर आपको फायर स्टॉपिंग सीलेंट्स. फायर स्टॉपिंग इज़ एक्चुअली जहाँ से भी वायर्स या पाइप्स पास कर रहे हैं उसके अराउंड ही ये सीलेंट फिल किया जाता है जिससे फायर पेनिट्रेट नहीं होता फ्रॉम वन रूम टू द अदर. तो फायर स्टॉपिंग की डिफरेंट लोकेशंस पर. इसी तरह से फायर रेटेड पार्टीशंस होती हैं या स्मोक बैरियर्स होते हैं, स्पेशल पार्टीशंस होती हैं जहाँ पर आप ये जिप्सम बोर्ड ऐसे यूज़ करते हो या ऐसे मटेरियल्स फिनिश यूज़ करते हो जिससे आपकी फायर जो है एक रूम से दूसरे रूम में एक्सटेंड नहीं होती. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिवीजन 7 ओवरव्यू और the waterproofing, dam proofing subcontractor.
Okay, one more you can search is penetration, and one more you can search is fire stop. So this is what you can more search for even more scope items. And this is not everything, but most of it. Okay, thank you.